Hello guys, we are here today. The GATE results are out, and along with us, the GATE top ranker, Mr. Shivam Anand, who is from a ordinary engineering college from Kolkata, Techno India, and his a lot of efforts for a continuously striving for the GATE top rank around 1.5 years to 2 years. He worked hard and 2 attempts he tried, and he got this year 2023 GATE top rank. So now in front of us, Shivam Anand, and he is here to share his feelings and happiness with us. Hello, Shivam. हेलो How you सर। are feeling about your GATE top rank? फीलिंग गुड सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब काफी समय से लगे हुए थे और काफी कुछ था कि मतलब कितना बार फेलियर भी देखे कि नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं और नहीं हो रहा है। तो क्योंकि बहुत समय लग गया तो अच्छा तो बहुत लग रहा है। आसानी से मिल जाता तो इतना अच्छा नहीं भी लगता। सो फीलिंग वेरी हैप्पी। So बहुत एक्साइट हो रहे क्या यस सर। शिवम? यस सर। बहुत एक्साइट हो रहे क्या? यस सर, ये तो होगा ही सर। मतलब इतना प्रिपरेशन, टेंशन, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा और फिर जाके रिजल्ट, तो एक्साइटमेंट तो होता ही है। यस सर। ठीक है, ये चीज बताओ. So how many यस attempts you have given for GATE to get this top rank? इट्स माई मतलब पूरे अच्छे तैयारी के साथ तो ये मेरा लगभग कॉलेज के बाद का ये थर्ड अटेम्प्ट होगा। मेरा इससे पहले भी जो है गेट क्लियर तो हो गया था। मतलब ऑल टाइम्स मेरा गेट क्लियर हो गया। बट हाँ, Okay. ये है कि जो रैंक के लिए चाहिए वो लेवल का प्रिपरेशन नहीं था, समय लगा उसको उस लेवल पे पहुंचने Okay. के लिए। यस। First attempt में how many marks you got? 51 मार्क्स थे। 51. Yeah, it's nice score. But most of the students are going to, if they got some 50, 55 marks like that, they can adjust to the यस rank and they can join whatever the IIT they are getting. यस What सर। makes you to continue the journey and to reach to top rank? Because 50 marks is a good score. You can get some good IIT also, top IIT also you can get. But what made you to go to second attempt and to get the top rank? What is सर हमको encouragement? यस सर, हमको Yeah, ऐसा tell me. लगता था कि सर जितना हम पढ़े हैं वो अभी तक पूरा नहीं है जो हम बहुत अच्छा रैंक ला सके। और पीएसयू या हर किसी का ड्रीम होता है, तो मेरा भी है उनमें से कि पीएसयू चाहिए। Yes. तो हाँ, और हम अभी तक खुश नहीं थे इससे पहले भी कि हाँ मेरा तैयारी हो गया, रिजल्ट जो भी आए। बट हाँ, काफी Hmm. समय लगता है अच्छा प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए हम थे कि अभी मेरा Hmm. पढ़ाई खत्म नहीं है, हम सब पढ़ेंगे और हम Hmm. मेरा हो जाएगा। हमको ये उम्मीद था कि हाँ अच्छे से करेंगे तो हो तो जाएगा। यस सर। Besides PSU dream and to call you as a top ranker, that also will be one of the dream for any student. एग्जैक्टली सर, Besides the एग्जैक्टली। job, besides the job. So to say yes, you are a top ranker, to prove us as a top ranker, that also a most encouraging moment for any of the student. यस सर, ये तो है सर। So Shivam, I know you cracked already ESC prelims, engineering service exam prelims also. यस So सर। are you going to continue your journey, or are you going to adjust with this top rank and you are going to join in PSU? नहीं सर, ईएससी का क्लास शुरू है, ईएससी का तैयारी चल रहा है। मेंस का एग्जाम 25 जून को है, 3.5 महीने है। तो हाँ. लगभग 100 दिन है और पूरा मेहनत करना है उसके लिए। So you are यस सर। continuing your preparation for ESC then. जी सर। यस So hope so, Shivam, you are going to get in ESC mains also, and you are going to get the job of IAS officer to become. And be happy for you, Shivam. And so, can you say what are the hurdles you faced in the preparation? And because sometimes it is a long journey, 2 years long journey. Sometimes you may यस feel getting demotivated. अरे बाबा इतना पढ़ रहे कोई नहीं आ रहे, रैंक आ रहे ना, रैंक नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे, ऐसा डिमोटिवेट हो जाएगा ना. So a student like you and so many are there, like you, so many people are there who are getting demotivated. इनको लिए थोड़ा थोड़ा मैसेज दे दो ना. यस सर। तो सर मेरा तो ऐसा था कि एक नॉर्मल सा कॉलेज था, उसमें पढ़े तो हाँ एक पढ़ाई लिखाई में मन लगता था, एकेडमिक्स ठीक था मेरा। उसके बाद फिर हुआ कि अच्छा गेट देना है। शुरू में मेरा इच्छा था कि हम एमटेक करेंगे। बट देयर आफ्टर दिए और ऐसा रिजल्ट फर्स्ट टाइम आया तो हमको लगा कि और मेहनत करना चाहिए, हमसे हो सकता है। फिर किए तो ये चूंकि लंबा जर्नी है और हमसे एक गलती हुआ जिससे हम सीखे बहुत कुछ। अगर ये गलती हम नहीं करते या समय में वापस जाना संभव होता तो हम ये चीज चेंज करते।
कि हम गलत जगह से जो है कुछ कंटेंट जो है या नॉलेज जो है वो लिए, वो पूरा नहीं था, और चूंकि पूरा नहीं था इसलिए 51 मार्क्स था। अदरवाइज हाँ। एक साल बाद ही एक बहुत अच्छा रिजल्ट होता, अगर सही जगह से सही टाइम पे होते। तो हमको एक एक टॉपिक मल्टीपल फैकल्टी से करना पड़ा, हम्म, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फैकल्टी। और ऐसा नहीं है कि फैकल्टी में कोई गलती होता है, हो सकता है हमको नहीं सूट कर रहा हो, बट हाँ एनीवे हम्म, हमसे लेट हो गया ये जज करने में कि हाँ हमको जगह पे या प्लेटफॉर्म ये बदलना चाहिए। और इसी कारण से समय लगा। अगर अच्छा स्ट्रेटजी के साथ कोई करे तो हाँ इतना समय नहीं लगेगा। हमसे तो गलती हुआ इसलिए इतना समय लगा, बट हाँ अगर कोई अच्छा जगह से करे तो जल्दी हो जाएगा, इतना समय नहीं लगता है। और जहां तक कि So, पढ़ाई पढ़ने और भूलने का बात है, तो हाँ उसमें तो समय लगता है। वो तो आप सब टीचर यही कहते हैं कि हाँ इसमें तो इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़ना है फिर भूलना है फिर पढ़ना है। मतलब ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट के साइड से कि सर याद नहीं हो रहा। तो ये सब मेरा था। और एक जो एक्स्ट्रा चीज हम सीखे अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के एग्जाम्स, दूसरा कोई तो हम एग्जाम कभी दिए ही नहीं। मेरा पूरा फोकस था कि नहीं हमको ये करना है बस, क्योंकि हम कॉलेज नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, और अब समय भी निकल गया काफी। तो डीमोटिवेट होते थे कि ओ माय गॉड अगर आप तो कॉलेज में भी नहीं गए, पीएसयू भी नहीं मिलेगा, तो हम शायद मतलब ऐसा लगता था कि सब खत्म हो गया। जैसे ऐसा फील होता है एग्जाम में अगर खराब जाता है तो मतलब हाँ, सब कुछ गया अब ऐसा। मतलब कॉलेज के साथ जो लोग करते हैं उनको लगता है कि ओके एमटेक तो हो रहा है, ये हो जाए तो अच्छा, नहीं हो जाए तो कुछ नहीं। बट मेरे लिए सब कुछ था। तो काफी टेंशन में भी थे हम। अक्सर आपको मैसेज भी किया करते थे कि सर ऐसा फील कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा। तो एक चीज ये था। और हाँ इस बार जो हम एक जो सबसे नया चीज सीखे कि प्रिपरेशन अपने हाथ में है। एग्जाम एग्जाम में परफॉर्मेंस और रिजल्ट कभी कभी अच्छा मेहनत के बावजूद भी खराब हो सकता है, पर हाँ मेहनत बेकार नहीं जाएगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ईयर कि सर मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स निकलेगा। और टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट हम दिसंबर के बाद पूरा फोकस था मेरा गेट पे, तो हम इंजीनियरिंग सर्विसेज का नॉन टेक पोर्शन पढ़ के ही नहीं गए थे। मतलब ये सच है कि हम पढ़ के नहीं गए, बट चूंकि मेहनत था, पहले पढ़े हुए थे, तो हाँ मेहनत से, पढ़ाई से, समय देने से रिजल्ट आता है। तो ये मेरा बिलीफ है, हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि मेरा भी काफी समय लगा है, बहुत लोगों का समय लगता है। तो जिनका समय लगता है वो लोग डिमोटिवेट तो हो जाते हैं कि हाँ कैसे होगा, नहीं होगा, क्या करेंगे। हाँ, मेरा भी जिस दिन खराब रहता था हम यही सोचते थे कि अब करेंगे तो क्या करेंगे, पढ़ाई तो कर लिए, हो गया, पर एग्जाम नहीं हो रहा। पर हाँ मोटिवेशन था सर सबका, जैसे जो भी है आप लोग। तो इसके बाद लगता था कि नहीं, अगर करना है तो करना है, समय लगेगा, सीट्स कम है, कंपटीशन टफ है, लोग बढ़ रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन सिर्फ करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकालना है तो कोर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना होगा, समय देना होगा, टेस्ट सीरीज भी देना होगा, सीखना होगा। उनसे देने के लिए तो बहुत लोग देते हैं, बट हमसे सीखना होगा, एड ऑन कर। तो ये मेरा जर्नी का था कि आदमी को होप रखना चाहिए। अक्सर हो सकता है आपका बहुत मेहनत के बाद आपका जब उठा उम्मीद नहीं होगा पूरा, बट मेहनत है तो हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। यस सर। So how many times you revised? Because students are regularly asking this question. Revision. Sir, we are getting bored doing revision. We are getting same concept studying again and again. So how many times you did revision? आई डिडंट हैव काउंट दैट, बट मेनी टाइम्स एक्चुअली। रिवीजन का तो सर मेरा ऐसा था कि रिवीजन थोड़ा सा बोरिंग होता है हर किसी के लिए, इंक्लूडिंग मी। तो हम सुबह सुबह अच्छा फील करते थे, तो सुबह सुबह उठ करके 3-4 घंटे कोई भी एक टॉपिक को रिवीजन करना है। और ये साइकिल लगभग हम भी लगभग, मेरा थोड़ा लंबा चलता था, तो लगभग 15-20 दिन में मेरा एक बार सब हो जाता था ऐसा। तो और जैसे जैसे अभी एग्जाम नजदीक आया तो 10 दिनों में एक बार हो जाता था, तो 10 दिन में एक बार पूरा हर एक टॉपिक को एक बार देख लिए। Yes. और साथ में एक चीज जो हमको बहुत अच्छा लगा, वो था एक सर, जैसे आपका हाइड्रोलॉजी का एक यूट्यूब पे सेशन था, 3 आवर्स 52 मिनट एग्जैक्टली। हाँ, वो हमको समय भी याद है, 3 आवर्स 52 मिनट, वो हम बहुत बार देखे। रात में जैसे सोने से पहले लोग रील्स देखते हैं, हम वैसे वो देखा करते थे। मतलब इतना अच्छा है कि हाइड्रोलॉजी तो ऐसा लगता था इसको पढ़ना ही नहीं है। मतलब हर रोज 1-2 दिन पे, 4 दिन पे सर का देख लिया तो सब कुछ याद ही है। मतलब कभी पॉज कर लिए, फिर सर फॉर्मूला लिखेंगे तो एक बार खुद से ही दोहरा लिए, देखे आ रहा है तो अच्छा है। तो हाँ ये चीज हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब ये ऑनलाइन का एक मतलब क्या कहें, गजब का बेनिफिट है। मतलब आपको नहीं पढ़ने का इच्छा है खुद से, तो आप रिवीजन के लिए एक लेक्चर लगा दिए रात में, जब थक गए, जब एनर्जेटिक है तब तो खुद से ही आदमी पढ़ लेगा। बट हाँ वो बहुत अच्छा, मतलब बेस्ट, इट्स जस्ट बेस्ट। मतलब वो बहुत अच्छा था कि 3-4 घंटे में हाइड्रोलॉजी हो जाए। मतलब हाइड्रोलॉजी के लिए दिन नहीं निकालना पड़ रहा है, वो रात में ही कभी 1-2 दिन में हो जाता है। तो यस रिवीजन के लिए ये था मेरा। yes.
और जिसका रिवीजन करते थे उसका क्वेश्चन नहीं करते थे। मतलब ऐसा नहीं हो कि सेम चीज का रिवीजन, सेम चीज का क्वेश्चन, रिवीजन किसी सब्जेक्ट का, क्वेश्चन किसी और का, सो दैट हाँ, रिकॉल भी हो सके कि हाँ मेरे में याद है नहीं है, और नहीं याद है तो अगले बार इसी चीज को अच्छे से पढ़ना है, ऐसा करके सर। so nice to hear this. Yes, students, you also please remember this. You can focus on revision with one subject and solving questions with other subject, so that you are not at all getting bored. That will help you a lot in your preparation. And revision is the important key for the success in any kind of examination. So Shivam, आपका पेरेंट्स आपको रैंक आने के बाद कैसा फील हो रहा है? कोई स्टूडेंट आपका पेरेंट्स बहुत के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं ना? यस सर, So, एग्जैक्टली सर। पेरेंट्स स्पेशली मेरे फादर जो है, हम लोग साथ में ही रहते हैं, मेरे पिताजी और हम। हम्म, तो हाँ, उनका खुशी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो मेहनत करते देखते थे। मतलब मम्मी को पता है कि कर रहे हैं और नहीं कर रहे, वो देखते थे कि टेंशन में है, सो नहीं रहा, खा नहीं रहा, वजन घट गया है, एग्जाम के दिन हाँ, और ज्यादा टेंशन में है, हम टेंशन में और उनको और टेंशन हो जाता था। तो हाँ, उनका कंटिन्यूअस सपोर्ट था, इसलिए सबसे ज्यादा खुशी भी उन्हीं को है। और वो भी देखते थे कि कभी कभी मायूस हो जाता है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, समय दे रहा है, तो उनको भी सेम मेरी तरह फील होता था। और इवन वो कुछ कह भी नहीं पाते थे, क्योंकि वो जान रहे हैं हम कुछ टेंशन में है तो और बुरा ही लगेगा। तो पेरेंट्स तो टॉप पे हैं सर। तो मेरे बाद अगर कोई सबसे ज्यादा होगा तो मेरे पिताजी होंगे। यस सर। हाँ, nice, nice. यस। So you are from West Bengal, ना? यस सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मतलब हम यहाँ रहते हैं, रहने वाले तो हम बिहार के ही हुए। बिहार में मुजफ्फरपुर Okay, जगह है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। यहाँ पे ही मेरा प्रिपरेशन हुआ okay. कोलकाता में, और उसके बाद हम हम्म, यहीं पे जो है कंटिन्यू कर रहे हैं तैयारी के लिए। वैसे तो ऑनलाइन में जरूरत नहीं था, पर पापा रहते हैं तो यहीं पे मन लग रहा है उनके साथ में। हाँ, हाँ, हाँ. Okay. So when any new student is going to start his preparation, so इनको कोई यस। गाइडेंस दे रहा है आपको, थोड़ा मोटिवेशन, और हाउ टू प्लान द जर्नी फॉर ए न्यू स्टूडेंट टू स्टार्ट हिज गेट एंड पीएससी प्रिपरेशन, इनके बारे में थोड़ा बात करो. यस सर। अगर औरों के लिए या हम खुद के लिए, मतलब हम भी अगर यही कहते हैं, अगर हम समय में पहले जा सकते तो हम जो टीचर से लास्ट में पढ़े, द बेस्ट वंस, हम उनसे पहली बार पढ़ते, मेरा समय बच जाता। हमको हम्म, उन्हीं चीजों को एक गलत तरीके से पढ़ना या याद करना पड़ा, वो हम्म, गलत हो गया। अगर पहली बार में एकदम अच्छे से समझ में आता, रिलेट कर लेते, तो मेरा समय बच जाता। और हर किसी का समय बच जाएगा अगर ऐसे कोई करे तो। कि ठीक है, मान लेते हैं सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, बट बिलीव कि एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं आते अब। तो हम्म, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, समझना होगा और याद भी करना होगा, और उनका न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना होगा, क्योंकि पीवाईक्यू में भी वैसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो हाँ, ऐसा हाँ, नहीं सोचना है कि ये सर बहुत ज्यादा बना रहे हैं तो इनसे नहीं पढ़ते हैं, जो छोटा में पढ़ा दे रहे हैं, कम आवर ऑफ लेक्चर्स में हो जा रहा है, वहां से पढ़ लेते हैं और एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, एग्जाम्स में बहुत टफ है अब। तो हाँ, एक बार में एक बढ़िया टीचर से पढ़ना ठीक है, एक साल की जगह आपको पढ़ने में मान लेते हैं थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, बट हाँ, हम्म, उसके बावजूद भी जब रिजल्ट आएगा तो एक एग्जाम का नहीं आएगा, हर एक एग्जाम का आएगा। क्योंकि नॉलेज होने के बाद हर एग्जाम निकल जाता है, और हाँ, नहीं कोई होने के बाद एग्जाम निकल जाएगा. करेक्ट, यस सर। करेक्ट, करेक्ट. हाँ, So तो guys, ये चीज listen this. हम What he is going to say, he is going to focus on the subjects with the top indicators. First, initially, we feel that so many number of lectures are there. So let us take a geotechnical or environmental. We have around 150 hour, 160 hour. So initially हम सोचते हैं इतना लंबा लेक्चर चलेगा, so हमसे और दूसरा लेक्चर से चलेगा, कम आवर्स में खत्म करेगा. But finally you are not going to get good content and good result. So focus on getting with the best teacher, even though the lengthy subject is lengthy and the number of hours are more, so that you are going to save your time initially itself. Identify the teacher whose content is good for your preparation and go continue with him and learn the concept, and then you are going to get the result. So to get a top rank, surely it will take a time. Minimum you have to spend 1.5 years to 2 years. So this much time is needed. Once you completed the subject as a subject, knowledge आ गया आपको, not only get आप कोई exam crack करेगा, because concept is same, subject is same, only model of questions will vary. So only by changing any kind of examination. एंड और शिवम, यस सर। आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? एक चीज सर हम और क्लियर आपका करना फ्यूचर चाहेंगे फ्यूचर कि प्लान्स क्या है? जैसे कि ये हम कहें कि अच्छे एजुकेटर से पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका एक बेनिफिट जो हम अभी तक नहीं जानते थे अब देख पा रहे हैं, जब मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तब पता लग रहा है कि वो हाँ, तो हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन होता नहीं है, वो लेंथी और फुल्ली प्रोसीजर वाइज होता है।
तो हाँ अभी हाँ। लग रहा है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब जहाँ पढ़े वो इतना सही पढ़े कि हमको यहाँ भी हेल्पफुल हो रहा है। हम्म, तो जर्नी खत्म नहीं हो जाता प्रीलिम्स के बाद या गेट के बाद। तो हाँ, पढ़ना चाहिए एक बार और सबसे अच्छे, क्योंकि बाद में वो बहुत जगह हेल्प करता है। सच में ये मेंस हाँ वाला तो हम अभी देख पा रहे हैं, ये मेरे साथ बहुत ग्रेट है। और सर फ्यूचर प्लान है मेरा कि अभी हम मेंस के लिए एकदम फुल्ली डेडिकेटेड है, तो 3.5 मंथ इज देयर और हम पूरा समय इसी को देना चाहेंगे। दैट्स इट। और फिर रिजल्ट के बाद देखते हैं, पीएसयूज के लिए फॉर्म भरेंगे, ऑब्वियसली भरेंगे। तो ये है कि वाह, मतलब इस मतलब अगर निगेटिव कुछ हो जाता है तो पीएसयूज रहेगा, तो लाइफ में सिक्योरिटी जो हर कोई चाहता है वो भी होगा मेरे साथ। और जैसा कि हम कहें कि पढ़ाई वाला पोर्शन अब लगभग हो गया है, तो अब पढ़ाई हो गया है, रिवीजन पार्ट है और कंपटीशन है, तो हाँ लोगों को आगे पीछे करना, पीछे तो चलेगा। तो हाँ, फिर हम रिवीजन करते रहेंगे और साथ में अनअकैडमी के साथ, क्योंकि अनअकैडमी तो दिन रात है, तो दिन में ड्यूटी भी अगर होता है तो रात में अनअकैडमी है। और तो मतलब ये मेरा एकदम मतलब फुल्ली शेड्यूल्ड है कि हाँ ये मतलब आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है। अब उसके लिए समय हाँ जितना लगे, हाँ, अच्छा टाइम चीज के लिए तो लगेगा, समय थोड़ा टाइम लगेगा। लगेगा। यस सर। हम्म, तो हम मतलब इस मूड में है कि ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो भी हम लगे रहेंगे। हाँ, तो ये है मेरे मन में। और अनअकैडमी के साथ रात में भी करना चूंकि बहुत इजी है, तो जॉब के साथ भी वो कैरी ऑन इजिली हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा रिवीजन पढ़ना, तो ये अच्छा रहेगा। यस सर। तो आपका प्रिपरेशन जर्नी में अनअकैडमी का रोल क्या है, इनका बारे में थोड़ा समझ हो यस जाएगा। सर। वैसे तो हम बताना चाहेंगे, अनअकैडमी से पहले हम एक ऑनलाइन भी जो है वो कोर्स लिए थे, ऑफलाइन। ऑफलाइन कोर्स हम लिए भी थे, और चूंकि हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़े हैं, हम बहुत जीनियस स्टूडेंट भी नहीं है, तो हमको पता है कि एज ए नॉर्मल स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम ऑफलाइन में हुआ, क्या ऑनलाइन में हुआ, या क्या बेनिफिट ऑफलाइन ऑनलाइन में है। हम्म, तो जैसे एक तो हम जो मतलब अगर अभी कोई ज्वाइन कर रहा हो उसको नहीं पता लगेगा, आफ्टर ज्वाइनिंग पता लगता है कि वो जो फुल डे ऑफ क्लास होता है किसी ऑफलाइन में, वीकेंड्स वाला, दोपहर में हाँ 2 बजे 1 बजे जो लंच होता है 4 घंटे क्लास के बाद या 5 घंटे जो भी है, खाना खाने के बाद बहुत अधिक नींद आता है। 4 घंटे से ब्रेन रेगुलरली कुछ कॉन्सेप्ट गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। हाँ हाँ। और फिर जिद्दोजहद होता है कि कैसे सोना नहीं है, पढ़ाई कहीं छूट जाता है। टू बी वेरी हम्म। ऑनेस्ट, हर किसी से होता है, हमसे ही नहीं, क्लास में हर किसी से होता था। अरे हमको तो मालूम था ना, हम ऑफलाइन क्लासेस ले लिया ना। हम भी खाना ओ खाने यस के सर। बाद, क्लास लेने के बाद हमको भी नींद आएगा। थोड़ा सा यस ऐसा भी गिडीनेस मिलेगा, ऐसा भी चलेगा, स्लो स्लो चलेगा क्लास में भी। करेक्ट सर। करेक्ट, हाँ। और एट द सेम टाइम इवनिंग वाला जो सेकंड अगर कहीं पे ब्रेक होता है, अगर लंबा क्लास है, उस ब्रेक में तो कभी कभी होता है आज बहुत थक गए हैं क्या छोड़ दे। और फिर मंजिल है, मंजिल कहता है छोड़ना भी नहीं है, अगर छोड़ दिए तो ये गया, और ये गया तो सब्जेक्ट गया, सब्जेक्ट गया तो जो 4-5 नंबर आने हैं एग्जाम में वो तो नहीं हाँ आएंगे फिर। तो वन नोज इतने बड़े सब्जेक्ट में से कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और लिंक नहीं कर पाएंगे, क्लैरिटी नहीं करेक्ट। होगा। तो फिर बैठना भी होता था, और सिर्फ ये ऐसा होता था कि नोट्स प्रिपेयर्ड हो रहा है, ब्रेन बंद हो गया है। ये बहुत खराब हमको लगा। तो हाँ हाँ फिर मन में चलता था कि बाद में घर जाके ये पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, वैसा नहीं हो पाता है। अगर क्लास में नहीं समझ में आया, ये हम फील करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर क्लास में नहीं समझ में आया तो वहीं पे रुक के पूछ के और डाउट क्लियर करके ही जाना है, न कि हाँ। इस सोच में कि बाद में कर लेंगे। बाद में करेक्ट। नहीं हो पाता, अगर अभी नहीं हुआ, उस टाइम सीख रहे हैं, फ्लो में भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो वो मुश्किल चीज है। और ऑनलाइन में अनअकैडमी से तो हम वैसे सर मतलब क्या कहें, अनअकैडमी हमको बहुत अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज बहुत अफोर्डेबल था। पहले भी हम जब से प्रिपरेशन में लगे, मतलब इतना अफोर्डेबल है कि अगर कोई आदमी दिल्ली या कलकत्ता या कहीं भी जाके तैयारी कर रहा है, तो एकोमोडेशन के 1/4 का कॉस्ट, फूडिंग हम्म। लॉजिंग का जो भी लग रहा है कॉस्ट, उसके 1/4 के कॉस्ट में इसका कोर्स हो जा रहा है। और अगर आप घर पे रह रहे हैं, ये तो सब जगह है, तो घर पे रह के आपका कोई खर्च है ही नहीं पढ़ने में। मेरे भी कोई हम्म, खर्च नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि पढ़ाई में कोई खर्चा हो रहा है, रहने में खाने में उससे ज्यादा खर्चा है, जीवन जीने में उससे ज्यादा हम्म, खर्चा है। तो ये है कि जिसको भी पढ़ना हो, मतलब पहले तो, इससे पहले मतलब अनअकैडमी पे जब हम जुड़े थे उससे पहले ही अनअकैडमी आया था 2-3 साल पहले, उससे पहले तो बहुत खर्चा था पढ़ाई में, या गेट करना है या इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, हर कोई नहीं कर सकता है। मतलब अंत में गार्जियन हाथ खड़ा कर देंगे कि देखो एक बार दो बार तैयारी कर ली है, अब इतना पैसा तो हमारे पास भी नहीं है कि आप हम्म, कंटिन्यू करो। बट यहाँ पे चूंकि इतना अफोर्डेबल है, गेट कॉम्बैट है, टेस्ट है, स्कॉलरशिप है, तो 50% 75% ऑफ के बाद एकदम नॉमिनल कॉस्ट कुछ बच जाता है। तो वो नॉमिनल कॉस्ट दे करके पढ़ना पढ़ना आसान है, अगर खुद में मोटिवेशन है कि हमको पढ़ना है, तो फिर हर्डल्स पैसे का तो नहीं आएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाइएगा। और दूसरा, इसका एक चीज ये अच्छा हमको लगा कि अगर समहाउ आपका पढ़ने में मन किसी वक्त नहीं लग रहा है,
तो आप क्लास को वहां छोड़ सकते हैं, न हम्म। कि उस क्लास को कंप्लीट करके नोट्स भरना है और दिमाग खाली रह जाए। आप बंद कर लीजिए, आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए, फिर हाँ, पढ़िए और अच्छे से ग्रैब कीजिए। करेक्ट। और दूसरा है कि अगर कोई चीज, जस्ट एग्जांपल, कोई टफ टॉपिक है, से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, हम्म। तो क्लास में एक बार में समझे, उस टाइम बनाया, बन गया, फिर 1-2 महीने बाद अगर रिवीजन का साइकिल आया, नहीं याद आ रहा है, उसी सर के उसी लेक्चर को देखने में उसका आधा समय लगेगा और फिर से हाँ, उतना ही क्लैरिटी आ जाता है। तो हाँ, हाँ। मल्टीपल टाइम देखने का ये एक फायदा है कि आपको अगर भूल गए तो आप देख हम्म। लीजिए और जल्दी हो जाता है। सेम टीचर सेम कंटेंट कॉपी लिखना भी नहीं है, हाँ, तो जल्दी करेक्ट, समझ में आ जाता है। ये हमको बहुत करेक्ट। अच्छा लगा। यस सर। तो ये दो So what बेनिफिट is मेरा था कि यस सर। so what is motivating factor, or who is behind you to achieve this kind of things? And because it is not a small journey, 6 months, 3 months, you must stay strong since 2 years, 2.5 years, na? So there should be some यस सर। fact of motivation or force of motivation. So regarding that force of motivation, थोड़ा बात कर स्टूडेंट्स के लिए। यस सर। तो सर मेरे लिए तो मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत अधिक था। मतलब मेरे फादर कहते थे कि आराम से आप पढ़िए, जब तक पढ़ना है अपना काम कीजिए, हाँ, होगा एग्जाम। तो उनके तरफ से ऐसा तक बात था ये, मतलब और पेरेंट्स से हम नहीं जानते लोग ऐसा कह पाएंगे कि पढ़ना आपके हाथ में, पढ़िए, हो जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं हो तो भी जीवन खत्म नहीं होता है। लाखों स्टूडेंट दे रहे हाँ, हैं, हर किसी का नहीं होता है। और यस, सच है, लाखों दे रहे हैं, हर किसी का कभी नहीं हो सकता। अगर सब कोई सब जैसा अच्छा भी पढ़ ले तो 100 नंबर भी अगर सब ले आए तो भी सबका नहीं होगा। तो हाँ, करेक्ट, ये एक चीज हमको था जो हमको दुखी नहीं होने देता था कि फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। बस इतना था, आप पढ़िए, अपना काम पढ़ना है, आप पढ़िए, रिजल्ट आएगा, हाँ, समय लगेगा। तो ये मेरे तरफ एक बहुत मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर था। और एक दो दोस्त थे जिनके साथ बात बात करके लगता था कि ठीक है, हाँ, ये लगता था कि हाँ मतलब सही जा रहे हैं। मतलब एक तो दो दोस्त होना चाहिए प्रिपरेशन में, बहुत ज्यादा तो नहीं चलेगा। हाँ। पर हाँ, एक दो ज्यादा दोस्त थे, होगा तो जैसे एक मेरा डिस्ट्रैक्ट हो दोस्त। जाएगा, ज्यादा होगा यस, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली सर। या ग्रुप स्टडी हो, दो से ज्यादा टीम हो गए, तो फिर बातचीत होने लगेगा, वो ग्रुप स्टडी नहीं रह जाएगा। तो हाँ, दोस्त थे जो काफी मोटिवेट किए। तो ये है सर। यस सर। ठीक है। हम्म। और कोई फाइनल फाइनल थिंग और फाइनल वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम योर साइड, फाइनल मोटिवेटिंग वर्ड्स टू फ्रॉम द स्टूडेंट्स। यस सर। हम पहले भी कहे थे और अभी भी यही मानते हैं कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आपको एक बार सबसे अच्छा पढ़ लेना है। सबसे अच्छा जो भी है, जितना भी ज्यादा है, समय ज्यादा लग रहा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, समय दे करके अच्छा पढ़ लेना है। पढ़ाई एक बार होता है बस, एक बार बस पढ़ना है। उसके बाद प्रैक्टिस ही होता है। प्रैक्टिस जहाँ का मन है आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, हम भी किए। और या मतलब टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन दे सकते हैं। एकेडमी पे प्रैक्टिस सेशन बहुत ही मतलब अच्छा है, बहुत अंडररेटेड प्रोडक्ट हो सकता है, उतना एडवर्टाइज नहीं है, बट प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा चीज है। क्योंकि फ्रेश क्वेश्चंस है, जैसे मेरी तरह जो रिपीटर है, बहुत बार क्वेश्चन बना चुके हैं पीवाईक्यू, उनको पीवाईक्यू याद होने लगता है, और वो सही चीज नहीं है। तो वैसे में अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है तो पता लगता है कि हमको नॉलेज है या हमको याद हो रहा है। तो प्रैक्टिस हाँ, क्वेश्चंस अच्छा है, उसमें टाइम भी बाउंड होता है, तो पता लगता है अच्छा हमको इतना समय लग रहा है, औरों को इतना समय लग रहा है। और कंपटीशन है, यहीं से भाव रहता है मन में कि ठीक है, हमको ये कम करना है। अगर ये समय कम नहीं हुआ तो रिजल्ट रैंक नहीं आ पाएगा। तो ये सर मेरा है कि अच्छे से प्रिपरेशन एक बार खूब अच्छे से करना है, समय नहीं बचाना या पैसा नहीं बचाना कहीं पे कि अच्छा हम यहाँ से कम में कर लेंगे या थोड़ा कम कंटेंट से हो जाएगा या शॉर्टकट कोई, ऐसा नहीं। तो मेरा यही कहना है, अच्छे से एक बार प्रिपरेशन। यस सर। ठीक है शिवम। Okay, all the यस very best, and you got the top rank. Congratulations once again. So all the very best. सर। Okay.